Hello, here is complete solution for class 4, subject Environmental Studies, chapter number 14, types of houses. Do you remember? Classify the materials given in the box as used to build a kacha house or a pakka house. For kacha house, stone, mud, tree leaves, branches are used, and for pakka house, bricks, सीमेंट एंड प्लास्टिक शीट जिसे हम एल्बेस्टर भी कहते हैं. टाइम टू आंसर. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द इनकरेक्ट ones. First, building materials are easily available in cities. True, correct statement. Second, very rich people live in slum areas. No, poor people lives in slum areas. Third, houses usually found in big cities are multi-storied. True. Fourth one, kacha house are made of materials like mud, leaves, branches of tree, etc. True, correct statement. Time to answer. Tick the correct option in each of the following statements. First, in places with a hot climate, people build houses with thick walls. Thin रहेंगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा, thick रहेगा तो बाहर धूप है और अंदर ठंडक होगी. Second, areas which receive heavy rainfall have houses with sloping roofs. ये roofs लिखा है, roof होगा. Third, houses in coastal areas are usually temporary. Why temporary? क्योंकि कभी भी आंधी तूफान ऐसा अगर होता है तो घर में पानी आ जाना, हवा के कारण घर टूट जाना, तो डैमेजेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको टेम्प्रेरी बनाया जाता है ताकि ईजिली उसको वापस से क्या कर सके, रिपेयर कर ले. फोर्थ वन, हाउसेस इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज आर मेड अप ऑफ लाइट मटेरियल्स. Time to answer. State whether the following statements are true or false. First one, nowadays houses have become compact. छोटे हो गए हैं. True, छोटे घरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं. Second, these days a lot of space is easily available to build a house in city. No, city में जगह ही नहीं बेटा. We are going to far off cities area. Third one, the houses in olden days were बिग एंड स्पेशियस. ट्रू, तो पुराने घर कैसे थे, बड़े बड़े हुआ करते थे, बहुत स्पेस होता था उसमें. फोर्थ वन, नाउअडेज द न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट इज गेनिंग प्रोमिनेंस. ट्रू है ना, बहुत कम फैमिलीज है जो जॉइंट में रहती है. मैक्सिमम लोग कैसे रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, मम्मा पापा एंड बेबीज. लेट अस प्रैक्टिस. फर्स्ट, ए, fill in the blanks. First one, people in Arctic regions live in igloos. Second, skyscrapers are very tall buildings in big cities. Third, houses in multi-storied buildings are called flats. Fourth, slits houses are built in flood-prone areas. Fifth, houseboats are a major tourist attraction in the Dal Lake of Kashmir. Sixth one, outer walls of houses in hot areas are painted in white color. क्यों white color? क्योंकि white color heat को absorb नहीं करता. B, match the following. First, wooden houses. जापान. वाई जापान? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है ये. सेकेंड, साथ में कोस्टल एरिया भी है जापान. सेकेंड, हाउस बोट्स, तो इट इज़ इन कश्मीर. थर्ड, स्काई स्क्रैपर्स फाउंड इन बिग सिटीज़. फोर्थ वन, कच्चा हाउस फाउंड इन विलेजेस. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, व्हाट आर स्काई स्क्रैपर्स? आंसर, अ वेरी टॉल बिल्डिंग ऑफ मैनी स्टोरीज. स्टोरीज यानी बहुत सारे क्या होते हैं, फ्लोर्स होंगे.
is called a skyscrapers. Second one, what is an igloo? Answer, an igloo is a dome-shaped house, typically built from blocks of solid snow. Question number 3, what are houses in villages made up of? Answer, the houses in villages are built of mud and the roof is thatched. You can also add built of mud, leaves and branches. Question number 4, what are houseboats? Answer, a house built on boats are called houseboats. Question number 5, name the materials used to build houses in coastal areas. Answer, woods and leaves are the material used to build houses in coastal areas. Long answer type questions. First one, what are the major factors which lead to the differences in houses of different areas? Answer, the major factors that lead to the differences in houses of different areas are, कौन से फैक्टर्स हैं जो हर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के हाउसेस बनते हैं? तो फर्स्ट इज़ हॉट प्लेसेस. हॉट प्लेसेस में कैसे हाउस होंगे? मोटे दीवार वाले, थिक वॉल्स. सेकेंड, हाई रेनफॉल रीजन, जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर हम ऐसे नॉर्मल घर बना देंगे तो हमारी छत में डबरा बन जाएगा. तो हमारी छत रूफ कैसी होती है? स्लोपिंग होगी ताकि पानी क्या हो जाए? बह जाए. थर्ड, फ्लड प्रोन एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे हर साल लगभग फ्लड आ ही जाती है, वहाँ पे बनता है स्लिट्स. ठीक है, मतलब ऐसे बैम्बू के वो रहते, लकड़ी के ऐसे खंबे बना दिए थे, पिलर्स बना लेते बैम्बू के, और उसके ऊपर घर होता है. ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर क्या होता है? वो खाली होता है. घर स्टार्ट ही कहाँ से होता है? फर्स्ट फ्लोर से होता है. फोर्थ वन, स्नोई माउंटेनियस रीजन्स, यहाँ पे भी कैसा होता है? घर स्लोप होता है. रूफ कैसी होगी? स्लोप होगी कि बर्फ़ ऊपर ना जमे, नीचे फिसल के गिर जाए. फिफ्थ, कोस्टल एरियाज़, तो यहाँ पे टेम्प्रेरी घर बनते हैं. क्यों टेम्प्रेरी बनता है? क्योंकि जब भी स्टॉर्म आता है उसके कारण घर इनका डैमेज हो जाता है, इसलिए जनरली टेम्प्रेरी बनाया जाता है. सिक्स, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़, तो यहाँ पे लाइट मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, लकड़ियों का ज़्यादा यूज़ होता है. अगर डैमेज हो तो ज़्यादा डैमेज ना हो और किसी को चोट मत लगे. ऑन लेक, लेक में कैसे बनते हैं? तो हाउस बोट्स बनते हैं. ऑन आर्टिक रीजन, इग्लू. क्वेश्चन नंबर 2, why do some houses have sloping roofs? Answer, snowfall occurs in highly mountainous regions. So, houses in such areas have sloping roofs so that the snow falling on them can slide down easily. Same is the case with heavy rainfall areas also. Question number 3, what are stilts houses? Why are they built so? The answer is, the flood prone areas slit houses are built. ठीक है, इन फ्लड प्रोन एरिया दीज हाउसेस आर बिल्ड. अभी हमने डिस्कस किया, नीचे बैम्बू के खंबे बना दिए जाते हैं, बहुत सारे पिलर्स होते हैं जो क्या करते हैं? उसको सपोर्ट करते हैं घर को. ठीक है, और ऊपर में क्या होता है? घर होता है. इट इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ वुड. बैम्बू इसलिए क्योंकि बैम्बू जल्दी ख़राब नहीं होता है इन बीइंग कॉन्टेक्ट विथ वाटर. इट इज़ मेड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म मच अबव द ग्राउंड लेवल, तो वो ज़मीन से ऊपर होता है. कैसे ऊपर होता है? बिकॉज ऑफ दिस बैम्बू पिलर्स. दिस प्लेटफॉर्म इज सपोर्टेड बाय वुडन पिलर्स कॉल्ड स्लिट्स, इसे ही स्लिट्स कहते हैं. सो द वाटर डज नॉट एंटर द हाउस ड्यूरिंग फ्लड. और जब बाढ़ आ जाती है तो ये लोग बोट के थ्रू क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन चालू रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ हाउसेज आर बिल्ड इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज? वाई? Answer, there is a danger of house falling down during an earthquake. Houses in such areas are made of light material like wood. अगर अर्थक्वेक आ जाएगा तो घर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा. सारी चीज़ें गिरने लगती, हिलने लगती है, सडन शेक होने लगता है. ठीक है, तो झटके में तो लगभग हर चीज़ क्या होती है बेटा? टूट जाती है. तो अगर ऐसे केस में अगर हैवी मटेरियल का घर है तो टूट जाएगा तो हम भी दब के मर सकते हैं, हमारे घर की चीज़ें भी ख़राब हो सकती है अगर हम नहीं प्रेजेंट है.
लाइट मटेरियल होने से क्या होता है, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और वो झटके को वो सह भी जाता है। दीज हाउसेज डू नॉट कोलैप्स, कोलैप्स यानी गिरते नहीं हैं, ड्यूरिंग अ माइनर अर्थक्वेक, माइनर यानी छोटे मोटे अर्थक्वेक पे वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि जो अर्थ प्रोन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में 5 से 6 अर्थक्वेक आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं, माइनर होते हैं। और जब मेजर आता है, जब बहुत ज़ोर का झटका आता है, तब बहुत ज़्यादा क्या होता है, लॉस होता है। अगर हम अच्छा घर बना लेंगे एकदम स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज़ करके, और वो दिन में 4 बार 6 बार अर्थक्वेक आएगा, तो क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे लाइट मटेरियल यूज़ किया जाता है। इवन इन केस ऑफ मेजर अर्थक्वेक देयर विल नॉट बी मच इंजरी एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यानी लॉस नहीं होगा, और इंजरीज यानी एक्सीडेंट्स।